Alright, now in this video particularly we are going to talk about some basic concept that is required to solve the 3.3 10th standard maths 1. 3.1 3.2 डील कर लिए हम लोग ने, 3.3 के तरफ हम लोग जा रहे हैं. Now before moving to that, let me quickly revise the TN का part here. Now you see TN हम लोग कहाँ पे यूज किए. So TN में T stands for, जैसे यहाँ पे लिखा है T stands for term, N stands for location of the term. ठीक है. Now if this given sequence is here, it's already an AP, right? Because the difference is common, right? 2 4 6 8. So this is your T1 T2 T3 and T4, right? So this N will give you the location of term. ठीक है. फिर TN का ये फॉर्मूला होता था. फिर ये TN का फॉर्मूला हम लोग ने कहाँ पे यूज किया, उसका दो यूज मैंने लिखा है. व्हाट इज योर फर्स्ट? If location is known but which number is there that is unknown, means what? सपोज पूछा क्या अभी तो ये चौथे लोकेशन पे 8 है, 8 है, राइट? ठीक है. सपोज पूछा क्या इन दिस गिवन सीक्वेंस 99th लोकेशन पे कौन है? 99th. तो क्या हर बार ऐड करते बैठेंगे क्या? अरे 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, ऐसे करते करते तो बहुत टाइम बीत जाएगा. So 99th लोकेशन पे कौन है? Means the location is known to you, but who is on that location? It is unknown to you. So for that you can use this formula. This we have solved in 3.2. Then secondly, if the number or term is known to you, means what? If suppose in this given sequence they will tell you, yeah, in this given sequence na somewhere there is number 112, 112. There is 112 somewhere in this sequence and now you need to find where it resides. मतलब रहता कहाँ पे, उसका लोकेशन क्या है. So the number or term is known to you but its location is unknown to you. Means what? The n is unknown. Then also you will use this formula only. Now dealing with the SN formula, first of all, let me tell you, S stands for sum and N stands for the number of terms whose sum is required. मतलब सीक्वेंस में तेरे को कितने सम्स का एडिशन चाहिए. ठीक है. एग्जाम्पल भी लिया मैंने, सेम सीक्वेंस में लिया यहाँ पे. एग्जाम्पल लिया मैंने S6. ओके. So 2 4 6 10 and so on. S6 means what? The sum of 6 terms. The sum of first 6 terms. ठीक है. तो S6 का मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा? 2 + 4 + 6, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म प्लस पांचवा टर्म प्लस छठा टर्म, 6 टर्म. So like this way the 6 terms का addition that will come out to be 42, right? Now this is quite easy, no? छोटा छोटा अगर पूछा क्या पहले 6 टर्म्स का सम बताओ, पहले 10 टर्म्स का सम बताओ, it's quite easy, right? But now next you say S25 they are asking you. Example लिया मैंने just. S25 means what? In the given sequence we need to find the sum of 25 terms. So these are your 25 terms in this given sequence, in this given AP. Alright. तो भाई ये एडिशन अगर करते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा. तो बच्चे ने क्या बोला यार, कितना लंबा कैलकुलेशन है यार, बहुत लंबा कैलकुलेशन है. ठीक है. सर ने उसको दूसरा सवाल दिया. Then he asked to find S100. Means what? In this given sequence 100 टर्म्स का एडिशन करो. ये तो 25 टर्म हो गए उनका एडिशन, वैसे 100 टर्म्स का एडिशन. तो सोचो बच्चा क्या बोलेगा फिर, यार हमसे ना हो पाए भाई, बहुत बड़ा कैलकुलेशन जाने वाला है. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटा मोटा टर्म्स का एडिशन इज इजी. पहले 6 टर्म का एडिशन, पहले 10 टर्म का एडिशन इजी, पहले 25 टर्म का एडिशन, पहले 50 टर्म्स का एडिशन. That is quite difficult. So in order to reduce this thing, to reduce that problem, we are here with the formula of Sn. So here Sn is equals to, I am repeating the formula, Sn is equals to n by 2 into the bracket, here multiplication is there, into the bracket 2a plus into bracket n minus 1 into d. Alright. Now let me tell you, यहाँ पे कुछ अपने पुराने साथी भी हैं, उनसे भी मिल लीजिए. What is your A? A is the first term of the sequence or AP. D is a common difference that you know how to find out, right? T2 minus T1 करके. ठीक है. Now here the N. What is your N guys? जैसे मैंने यहाँ पे ही बताया है. N मतलब क्या भाई, तेरे को कितने टर्म्स तक का एडिशन चाहिए? पहले 50 टर्म्स का चाहिए, पहले 10 टर्म्स का चाहिए, पहले 100 टर्म्स का चाहिए, कितने भी एडिशन चाहिए. So that will be here N.
ठीक है, वहां पे क्या था, एन मीन्स कुछ अलग बात था टी एन में, एन वॉज देयर द लोकेशन एंड हियर एन इज योर कितने टर्म्स का एडिशन चाहिए वो रहेगा, ठीक है। सो हियर S25 के लिए देखो सिंपली एन के जगह पे आएगा 25, सो वी आर पुटिंग द वैल्यूज ओवर हियर, यू कैन सी द कैलकुलेशन पार्ट, not so difficult man, not so difficult, just here 2 into 8, this is 2 2s are, then bracket में गया value, I will solve the bracket first, then we will multiply over here, then this additions over here, and then again multiplication, and the answer is getting 650. Alright, now this calculation is quite easy, no, compared to this addition. Yes, you can do addition with the calculator. ये एडिशन आप करके देखो, आंसर दोनों का, यहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो बराबर है। तो यहाँ से अपने ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का पार्ट रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली मैंने दिखाया है S100 का भी, कि अगर 100 टर्म्स, यहाँ पे तो मैंने 4 ही लिखे, ऐसे सीक्वेंस बढ़ते जाएगा ना आगे 10, 12 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, तो वैसे 100 टर्म्स का एडिशन अगर पूछेंगे तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला अगेन, सेम, खाली यहाँ पे n बदल जाएगा, सीक्वेंस मैंने वही रखा है, तो a भी वही रहेगा और d भी वही रहेगा, n का वैल्यू चेंज हो जाएगा आपका। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस थिंग, दिस डिवीजन इज ओवर हियर, 2 2s आर, ब्रैकेट सॉल्व किया, मल्टीप्लिकेशन, कैलकुलेशंस आर क्वाइट इजी, पर्टिकुलर ये मैंने दिखाया है उसमें, ठीक है। सो S100 इज इक्वल्स टू 10,100, सो यू कैन डू ऑन योर कैलकुलेटर ऑल्सो, है ना, दोपहर को चालू करो, कैलकुलेट करना होगा 2 + 4 + 6 + 8 +, ऐसे करते करते यू हैव टू add 100 terms in that sequence so that you will get this answer. Alright, so this is the basic concept that we have learned before moving to 3.3. Now the next जो अपना पूरा e-learning का कंटेंट अभी इसी वीडियो में ज्वाइन करने का ट्राई करते हैं, लेकिन इसका रेट थोड़ा सा फास्ट है, तो अगर ज्वाइन हुआ तो अच्छे है, अदरवाइज फिर वो दोनों अलग वीडियो कर देंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच पीपल। Alright, now in this video particularly we are going to talk about the 10th standard maths 1 3.3. ओके, सो बिफोर दैट 3.3 का कंसेप्चुअल वीडियो हम लोग ने ऑलरेडी बना के रखा है, तो वो वीडियो अलग से बनाया है, अगर वो एडिट हो गया, बिकॉज दोनों का रेट अलग है, तो हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसका लिंक मैं मेंशन करूँगा इस वीडियो में, 3.3 का कंसेप्ट बिल्डिंग वीडियो। ऑलराइट, नाउ हियर after that video I am linking to this video, find the sum of all odd numbers from 1 to 150. So first of all we have to prepare that sequence, that AP 1 to 150 के odd numbers, तो it will start with 1, then 3, 5, 7 and so on. ओके, ये हम लोग ने चीज़ TN में भी किया था, जहाँ पे सीक्वेंस नहीं दिया है तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सीक्वेंस बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे सीक्वेंस हम लोग ने बना लिया है 1 3 5 7, ये हो गया शुरुआती पार्ट, बराबर। एक बार हम लोग शुरुआत से जाएंगे, एक बार हम लोग पीछे से आएंगे, एंड से आएंगे। तो 150 की अगर बात करेंगे तो 150 इज नॉट अ ऑड नंबर, तो 150 के पहले कौन है 149, सो इट इज एन ऑड नंबर, राइट। तो 149 पे ये सीक्वेंस क्या होगा, एंड हो जाएगा। सो सीक्वेंस अपने को मिल गया एक दफा, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, a मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 1, and what we will get another thing, that is your D, that is common difference, T2 minus T1, that is 3 minus 1 2, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, so common difference is 2, तो A and D का वैल्यू मिल गया, and then we need to find sum, right। तो अब बताओ मुझे एक चीज कि यहाँ पे कितने टर्म्स है वो हम लोग को पता है क्या, 1 to 149 में कितने टर्म्स है वो हम लोग को पता नहीं है, मीन्स व्हाट द वैल्यू ऑफ n हियर इज अननोन। उन्होंने क्या बोला कि फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150, तो हम लोगों ने सीक्वेंस तो बना लिया, लेकिन ये पता नहीं है कि 1 to 150 में ऑड नंबर्स कितने बैठते हैं। सो हियर वी विल लुक फॉर द वैल्यू ऑफ n, सो फॉर दैट n वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ Tn। गाइज आई एम सॉरी, एक्चुअली ये सब ना मुझे पहले नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, फिर भी चलो अभी लिया है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन बाद में इसके जैसे और सम्स आएंगे तो वहाँ पे अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये कंसेप्ट दिमाग में जा रहा है तो डाल लो उसको थोड़ा, कि यार उन्होंने बोला है कि सम ऑफ द नंबर्स sum of the all odd numbers between 1 to 150, so we made the sequence of the all odd numbers, but the thing is that ना हम लोग को ये पता नहीं कि ये कितने जो लोग हैं,
फर्स्ट टू 150 के बीच में ऑड नंबर्स कितने हैं वो हम लोग को पता नहीं है. सो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो फॉर दैट वी विल फर्स्ट अप्लाई दिस थिंग. याद है ना, मैं ये TN का हम लोगों ने बेसिक पार्ट देखा था. अभी ये वाले इसके पहले की वीडियो में भी मैंने वो रिवाइज करवाया है कि 149 इज देयर, राइट. एंड इफ यू वांट sorry for my slip of tongue, if you want how many terms are here in the sequence, so you will assume your last term as a tn. You will assume your last term as a tn, then you will use the formula of tn to get the value of n. ठीक है, this formula I have used. tn के जगह पे आएगा 149. a is known to you, d is known to you, and you will get means what, who is sitting ये हमें पता है, लेकिन where it is sitting ये हम लोग को पता नहीं है. तो दैट इज द लोकेशन इज अननोन, n इज अननोन. मल्टीप्लाई कर लिया, -2 हो गया, 1 - 2 माइन, अबे इतना जल्दी धीरे धीरे धीरे. 1 - 2 -1 हो जाएगा. ठीक है, तो वो -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा. 149 + 1 150 हो जाएगा. एंड यहाँ पे बचेगा 2n ना, तो 2 मल्टीप्लीकेशन में वहाँ पे जाएगा तो डिवीजन, तो 150/2 दैट इज योर 75. मतलब ये कितने लोग हैं टोटल, 75. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ S75. समझ रहे हो, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर. ये ऑल मतलब कितने हैं, 75. सो यहाँ पे दिख रही है, रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि यहाँ से शुरुआत करके यहाँ तक एंड करना है. तो A हम लोग को पता है, D हम लोग को पता है, एंड वी नो द n ऑल्सो दैट इज 75. 75 कुल मिला के टर्म्स है पूरे सीक्वेंस में. सो वी विल फाइंड द S75. ऑलराइट, सो वी विल सिंपली पुट द वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला. यहाँ पे आएगा n के जगह पे आएगा 75, n के जगह पे आएगा 75. a क्या यहाँ पे आ गया 1, सो 2 1 = 2 प्लस n-1. कितना शॉर्ट कैलकुलेशन है. n-1 means what, 75 - 1 that is 74 आएगा. एंड 74 into 2 तो आंसर आएगा 148. ठीक है, alright, so we will solve this thing to get your final answer, that is 75 into 75 5625. ओके, इसका मतलब 5625 आंसर आया था. याद रखो 5625 मतलब क्या, ऑड नंबर के ये पूरा सीक्वेंस जो है, इन सभी का एडिशन, इन सभी 75 टर्म्स का, इन सभी 75 टर्म्स का एडिशन कितना होगा, 5625. ऑलराइट, चालू ही नहीं किया था वीडियो. अगेन फर्स्ट टर्म 3.3 का फर्स्ट सम इज हियर. फर्स्ट टर्म and common difference, that is your a and d is given to you. They are asking you to find the value of S27 मतलब 27 टर्म्स का एडिशन चाहिए. तो a है, d है और n भी है ना तेरा, क्योंकि 27 टर्म्स का एडिशन चाहिए. तो सिंपली वी विल यूज दिस फॉर्मूला. एक्टिविटी बेस्ड सम है, तो यहाँ पे आएगा 2a. ठीक है, फिर वैल्यूज पुट किया, n का वैल्यू 27/2, 2a तेरा 6 है ना, 2 6 = 12 प्लस n-1, d कितना है तेरा 3m. यहाँ पे फिर n के जगह पे क्या आएगा 27. क्यों नहीं लिखा, 27 - 1, तो 27 - 1 26. 26 into 3 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका एडिशन करके यू विल गेट आंसर 90. देन 2 उसको डिवाइड करेगा 45. देन 27 into 45 यू विल गेट 1215. तो S27 मतलब ऐसा सीक्वेंस जो कि 6 से शुरू होता है और कॉमन डिफरेंस 3 को लेके आगे बढ़ता है, उसके 27 टर्म्स का एडिशन कितना है, 1215. ओके, सो इन दिस सम पर्टिकुलरली अभी चालू है. ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर. तो पहले तो सवाल समझो, इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये हो गया शुरुआत कहाँ से होगा पता है अपने को. और उन्होंने क्या दिया है, फर्स्ट 123 मतलब इस गिवन सीरीज के 123 इवन नेचुरल नंबर्स का एडिशन चाहिए. समझ रहे हो, 123 इवन नेचुरल नंबर्स का मतलब व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ n. याद है SN के फॉर्मूला में n क्या है, n इज योर नंबर ऑफ टर्म्स हुज एडिशन इज रिक्वायर्ड. नंबर ऑफ टर्म्स हुज एडिशन इज रिक्वायर्ड. तो
तो यहाँ पे 123 नंबर्स का एडिशन चाहिए। तो ए का वैल्यू अपने पास है, डी का वैल्यू भी है एंड एन का वैल्यू भी है, दैट इज 123। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट सम के जैसे रिलेट मत करो आप, उसके जैसे सम नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिया है कि कितने टर्म्स का एडिशन चाहिए करके, ठीक है। सो 123 टर्म्स का एडिशन चाहिए, दैट इज गिवन टू यू। सो एसएन का फॉर्मूला वी विल यूज ओवर हियर, देन the all values are with us, so it's simple calculation part is here involved। so n के जगह पे 123, then a के जगह पे 2 will go, n के जगह पे 123, d के जगह पे 2 will go। Alright, now here we will carry out this first of all multiplication, then we will solve this bracket part here, then we will do again multiplication। oh my god, battery is getting low। is multiplication 244 plus 4, this we will get 248, then we will divide this thing by this, so we will get 123 into 124, after that we'll get the answer 15252। it means what कि even natural number का जो सीरीज था 2 4 6 8 10 12 ऐसा, तो उसमें पहले 123 नंबर्स का एडिशन कितना रहेगा 15252। मतलब जब आप ऐड करोगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + ऐसे करते करते 123 नंबर्स तक आपको जाने का है, ठीक है। 123 तक जाने का नहीं है, ये कंफ्यूजन मत डालो, क्योंकि 123 तेरा इवन नंबर ही नहीं है पहली बात तो ये 123 नंबर ऑफ टर्म्स है जितने आपको एडिशन में इन्वॉल्व करने हैं। ऑलराइट, so that addition will become 15252। Alright, continuing with the 3.3 का third sum, let me focus the thing, okay, alright, fine, find the sum of all even numbers from 1 to 350। now first of all the sequence is not in front of us, so we have to form the sequence will be starting from 1, will be ending at 350, and we will include all the even numbers। now let's see how the sequence will be prepared। alright, the sequence is right in front of you। so like हम लोगों ने जैसे एपी में भी टीएन के सम्स में भी किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, बट 1 itself is not a even number, so उसके आगे जाएंगे 2, उसके बाद 3 is not a even number, so 4, then 6, then 8 एंड ऐसे जाके जाके तो शुरुआत तो मिल जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस बनाते टाइम आपको ये करना है कि एक शुरुआत दे दो और एक एंड दे दो, दैट इज द इम्पोर्टेंट, स्टार्टिंग पार्ट एंड एंडिंग पार्ट। नाउ कहाँ तक जाना है आपको 350 तक, सो 350 itself a even number, an even number, so we will write the 350। so the sequence of the even numbers from 1 to 350, it will start from 2 and it will end to 350। alright, now one thing you can notice ki common difference, yeah, 4 minus 2 2, 6 minus 4 2, 8 minus 6 2, so the common difference d is maintained over here, that is nothing but d is equals to 2, here a is equals to 2 starting with the a, and d is also equals to 2। alright, and now what they are asking you, find the sum of all even numbers from 1 to 350, means the sequence actually starts from 2 4 6 8 until 350। now here that thing जो हमने फर्स्ट सम देखा था ना, याद है, उसके जैसा ये सम है कि अभी चलो सीक्वेंस तो मिल गया, लेकिन सीक्वेंस में कितने लोग हैं, कितने टर्म्स है, वो हम लोग को पता नहीं है, बराबर। मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज अननोन टू यू, राइट। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फर्स्ट वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ tn, राइट। सो जैसे तुम लोग को tn में मैंने बताया था, यार सीक्वेंस मेरा 350 पे एंड होता है, बराबर है, तो 350 एक तरह से सीक्वेंस का लास्ट नंबर हो गया। तो सीक्वेंस के लास्ट नंबर का जो लोकेशन रहेगा, दैट इज n, द लोकेशन ऑफ द लास्ट नंबर इन द सीक्वेंस, राइट, दैट लोकेशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था यार 3.1 में, ये केस मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा, ठीक है। तो जैसे इसका जो भी सीक्वेंस रहेगा, समझ लो कि उतने नंबर्स इस सीक्वेंस में है, मतलब इसका अगर सपोज लोकेशन नंबर आया 50, सपोज लोकेशन आया 50, इसका मतलब क्या है
कि टोटल इस सीक्वेंस में भी कितने लोग बैठे हैं, कितने नंबर्स बैठे हैं, 50 नंबर्स बैठे हैं, ठीक है। सो टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ n वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ tn where the term is known to you but the location is unknown. The location of last number is unknown to you, so we will use this formula. समझा क्या ये, समझा क्या इनका पहले तो हम लोगों ने सीक्वेंस बना लिया, फिर इनका एडिशन करने का अपने को, लेकिन ये कितने लोग हैं वही पता नहीं है ना। थोड़ी ना हम लोग गिनते बैठेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे करते थोड़ी गिनते बैठेंगे, बहुत टाइम जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने इन्वॉल्व है वो निकालने के लिए हम लोग टी एन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बाय दिस थिंग, बाय हेल्प ऑफ द लास्ट नंबर, बिकॉज लास्ट नंबर का जो लोकेशन रहेगा उसका लोकेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस। यू कैन सी उसको टी एन अज्यूम करते हैं हम लोग, लास्ट नंबर को 350, ए आया डी आया, मल्टीप्लाई करके लिया 2n माइनस 2, 2 कैंसिल, 2n 2 मल्टीप्लिकेशन में, कहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में, (350/2) डिवीजन हो जाएगा 175। सो n का आंसर कितना मिला 175। मतलब इसका मतलब पहले पहचानो क्या है, दैट 350 is on the 175th location, 350 is on the 175th location, right? And इसका location will indicate you how many terms are there. तो how many terms are there, जितना इसका location रहेगा आखिरी वाले का, that is 175। तो आपको पता चल गया कि यार find the sum of all even numbers from 1 to 350, तो ये लोग हैं वो, और उनका सम मतलब उनके जैसे कितने लोग हैं तो 175 लोग हैं, 175 नंबर्स हैं। तो यहाँ से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, एंड देन यू हैव द फॉर्मूला ऑफ Sn विथ यू। तो ये आपको एक्चुअली फाइंड आउट करना है, 2 + 4 + 6 + 8 प्लस करके करके 350, और ऐसे कितने लोग हैं टोटल 175 टर्म्स आर देयर। एंड वो कैसे पता चला, फ्रॉम द लोकेशन ऑफ लास्ट नंबर, और वो कैसे पता चला, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ Tn। ऑलराइट, moving ahead, we have the value of a d and now we have the value of n also 175, so we just need to use the formula now. all right, वो लोग कौन सी फार्मूला, अरे यार ये फार्मूला मत दिखाओ, ये थोड़ा सा दूसरा फार्मूला है Sn का, ठीक है, ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे नॉर्मल फार्मूला अपना Sn = 2a + n - 1 × d, तो उधर a भी पता है, d भी पता है, n भी पता है, तो वो वाला फार्मूला यूज़ करो। आई विल सजेस्ट यू ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करने का अभी बता देता हूँ, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा ना थोड़ा, तुम अभी के लिए मत सॉल्व करो ये फार्मूला से, अभी के लिए मत सॉल्व करो यार, ठीक है, वही जुना वाला फार्मूला यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि a है, d है, n भी है, ठीक है। तो फिर आपको वहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा S175, ठीक है। खाली उसका एक बार आंसर देख लेते हैं बस, ठीक है। तो आंसर आपको आना है 30800, 30800, ओके फाइन। टेक्स्ट बुक में शायद से आंसर इसका रॉन्ग हो सकता है, तो आप एक बार देख लो, क्योंकि टेक्स्ट बुक वालों ने ना क्या किया पता है क्या, टेक्स्ट बुक वालों ने 348 तक लिया है, कहाँ तक लिया है 348 तक, समझ लो टेक्स्ट बुक का आंसर पक्का इसका कुछ अलग ही रहेगा। तो उनका जो अजम्पशन है सीक्वेंस के बारे में वो 348 तक लेते हैं, लेकिन अरे 350 भी इवन नंबर है ना, तो तेरे को 1 to 350 तक फाइंड आउट करना है ना, तो यू विल ऑल्सो इंक्लूड 350 ना, ओके बात समझो। ऑलराइट, लेट मी रीड दिस सम फॉर यू। इन एन एपी 19th टर्म इज 52, मतलब T19 इज 52, 38th term is 128, means T38 is 128. Find the sum of first 56 terms, means what, 56 terms का एडिशन चाहिए, मतलब S56 they are asking for। बट यार गौर करो एक बात पे, Sn के फॉर्मूला के लिए 3 चीज़ें लगती है, कौन सी, A, D, N। चलो इधर क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, मतलब यहाँ से आपको N मिल जाएगा, Sn के फॉर्मूला का n मिल जाएगा, a और d कहाँ से आएगा,
तो भाई ये ए और डी ना ये गिवन इंफॉर्मेशन से आएगा। आपको अगर याद रहेगा तो 3.2 में भी हम लोग ने ऐसा एक सम सॉल्व किया है जहाँ पे we use the given information, we get the two equation in the form of a and d. Now once we will use this thing, no, this we formula we are using here for T19. So whatever we will do, only we can do only just put the value of n over here, because we can't put the value of a and d, right, because they don't are with us. So T90 का वैल्यू अपने पास है. What is your T90? दैट इज योर 52. तो वो चुपके से जाके लेफ्ट हैंड साइड बैठ जाएगा, राइट. वीडियो चालू किया ना, हाँ, थैंक गॉड. सो T90 की जगह पे आजा 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 आजा. तो दिस इज योर 52, 98 माइनस 1, दैट इज योर 18D. सो दिस इज योर वन इक्वेशन, राइट. तो ये आपको इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जैसा बन जाएगा, ठीक है. तो T38 की जगह पे भी क्या आएगा तेरा 128, एंड ये फॉर्मूला एन जगह पे 38 माइनस 1 देन 37D. ये इक्वेशन नंबर 2. आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ओके, अभी वो देख लो यार, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, राइट. ए अच्छा, ये ऐसा भी सब्ट्रैक्शन चलता है, ऐसे कुछ जरूरी नहीं कि ये वाला पार्ट आगे चाहिए ये वाला पार्ट पीछे चाहिए, खाली साइड का अदला बदली हो जाएगा, ठीक है. तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, नीचे के साइंस चेंज हो जाएंगे. 37 माइनस 18 आंसर आएगा आपका 19, एंड देन 19 फोर जा ना, 19 उधर चला जाएगा. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी. नाउ डी का वैल्यू यू कैन पुट एनी ऑफ दिस वन इक्वेशन, नो. You will obviously select the one simple equation in which you will put the value of d to get the value of a, right. And once you get the value of a, then you will have a, d, and then you have the value of n also, right, क्योंकि first 56 टर्म्स का पूछा है. तो कुछ नहीं, खाली यहाँ पे पुट किया है वैल्यू. आई थिंक ए विल कम एज नेगेटिव, ऑलराइट. तो आपका सीक्वेंस जो है एपी जो है वो शुरू होगा -20 से और डिफरेंस डालेगा 4 का. मतलब सीक्वेंस कैसे हो जाएगा पता है, -20 प्लस 4 दैट इज -16 प्लस 4 दैट इज -12. ऐसे आपका सीक्वेंस आगे बढ़ते जाएगा. सो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ ए ऑल्सो, डी ऑल्सो एंड एन ऑल्सो, राइट. जस्ट पुट इन टू द अवर रेगुलर फॉर्मूला. एस एन इज इक्वल्स टू, बोलो मेरे साथ, एस एन इज इक्वल्स टू 2a, सॉरी, n बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1t, राइट. और उन्होंने क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म्स. सो व्हाट इज योर n नंबर ऑफ टर्म्स हुज एडिशन इज रिक्वायर्ड. तो 56 टर्म्स का एडिशन इज रिक्वायर्ड. तो n क्या आएगा 56, a यू नो, आजा -20, n 56, d 4. This multiplication, this thing you have to solve. Then here it will come as -40. You will solve this bracket first, 55 into 4. Then you will do this multiplication first, right. अच्छा, meanwhile you can do this division also, no, because it is divisible by 2. कर लो ना, कोई क्या दिक्कत है. नहीं करना तो मत करो, क्योंकि वो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. तो ये आंसर आएगा 180. तो ये 2 आपका हो जाएगा 90, ठीक है. तो ये 56 इंटू 90, तो आंसर आएगा आपका 5040, ठीक है. तो अरे इधर भी डालने का भाई, इधर उन्होंने डाला नहीं है, लेकिन इधर भी आपको लिखना पड़ेगा S56. ये पूरा कैरी करना पड़ेगा, S56 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 ऐसे करके. कितना आया एडिशन सबका, S56 मतलब 56 टर्म्स का एडिशन कितना आया, 5040. Alright, so we have to first of all read the condition. Complete the following activity to find the sum of natural numbers from 1 to 140. Natural numbers तो 1 से शुरू होते हैं. Which are divisible by 4. So according to given condition, पहले सीक्वेंस बना लेते हैं. तो भाई 1 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं. 2 होता है, 3 होता है, नहीं. तो चालू कहाँ से होगा सीक्वेंस तेरा, 4 से ही होगा. एंड डिविजिबल बाय 4 बोला है, तो डिफरेंस भी कितने का बैठेगा, 4 का ही बैठेगा. 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन. शुरुआत मिल गई. अभी लास्ट पार्ट देखते हैं ना. हियर ओके, नाउ यहाँ पे इफ यू सी केयरफुली, दे हैव टेकन दिस सीक्वेंस टिल 130, अभी 140, ठीक है. नाउ ओके,
सो हियर अगेन वन मोर थिंग इज कि 4 to 8 ठीक है, लेकिन देखो 140 तक बोला है तो 140 इज डिविजिबल बाय 4 ऑल्सो ना, लेकिन उन्होंने सीक्वेंस यहाँ पे 136 तक लिया है। तो मैं एक बार आप ये वाला देख लीजिए, फिर उसमें बुक का मैं आंसर चेक करता हूँ क्या है, ठीक है। पिछले वाले में भी वही प्रॉब्लम था, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से जो आपका सीक्वेंस है वो 140 तक जाना चाहिए, क्योंकि दिस 140 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो बुक्स के साथ मैच करने के लिए सॉफ्टवेयर में भी उन्होंने वैसे ही सॉल्व किया है, ठीक है। लास्ट वाला नहीं किया था, ये वाला किया है, ठीक है। तो 140, ठीक है, हम लोग ये देख लेते हैं हम पहले, ठीक है। 140 के पहले फिर कौन आता है 139, 138, 137, तीनों डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो 136 है। तो 136 तक उन्होंने सीक्वेंस बना के रखे हैं। लेकिन अभी इस गिवन सीक्वेंस में कितने लोग बैठे हैं, कितने नंबर्स है, ये आ गया ना पहले जैसा फर्स्ट सम, कितने नंबर्स है वो हम लोग को पता नहीं है। तो उसके लिए अपने को n निकालना पड़ेगा, एंड फॉर दिस n जो लास्ट नंबर रहेगा उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, एंड उस पर हम लोग प्रयोग करेंगे tn के फॉर्मूला का, टू गेट द वैल्यू ऑफ n, दैट इज द लोकेशन ऑफ लास्ट नंबर इन द सीक्वेंस। बिकॉज इसका जो भी लोकेशन रहेगा तो पकड़ लो कि उतने ही टर्म्स इस पूरे सीक्वेंस में है। इसका लोकेशन आया सपोज 50 या 60, इसका मतलब इस पूरे सीक्वेंस में भी कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, 60 नंबर है, ठीक है। सो फॉर दैट वैल्यू ऑफ n वी विल यूज द tn। तो आई थिंक ये टेक्स्ट बुक में से ही ऐसे दिया रहेगा। a we have 4, d also we have 4, so we will use first of all tn का formula to get the location of the last number, because the location of last number will decide how many terms are there in that given sequence. So tn के जगह पे 136 आया लास्ट नंबर आपका, अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। मेरे हिसाब से 140 होना चाहिए था। ओके, तो जस्ट वेट 136 आया, 4 आया, ठीक है। फिर ये आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इसका कैलकुलेशन अभी आपको आना चाहिए। 4 इंटू n 4n, 4 इंटू -1 -4, तो देखो +4 एंड -4 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4n, 4n में से भी 4 मल्टीप्लिकेशन में, तो वहाँ पे जाएगा तो डिवीजन, तो इसको वो डिवाइड करेगा, तो उसका आंसर कितना आएगा 34, ठीक है। तो n का आंसर है 34, तो वी विल गो फॉर दिस फार्मूला। तो अपने को पता चल गया कि वो 2 4 6 4 2 12 वो सीक्वेंस में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 34 टर्म्स आर देयर। सो विल फाइंड द एस 34। तो ये वैल्यू आपका जाएगा, ये एक्टिविटी बेस्ड है ना, इसके लिए सब शॉर्ट में दिए हैं। तो यहाँ पे आपका a के जगह पे जाएगा 4, n के जगह पे जाएगा 34, देन d के जगह पे जाएगा अगेन 4, ठीक है। सो आप कैलकुलेट करके देखिए आंसर क्या आता है। 2380 शुड बी योर आंसर। सो सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 40 डिविजिबल बाय 4 कितना रहेगा 2380। अच्छा, अभी ये थोड़ा अलग सम है, अभी जितने भी सम सॉल्व किए उतने से थोड़ा अलग है। क्या दिया है सम में? सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP इज 3300। Sum of first 55 terms means what? Abhi already sum is given to you. It means what? This is your S55. What is this? S55. Sum of 55 terms is 3300. Then from that you have to find the 28th term. क्या फाइंड आउट करने का आपने को? 28th टर्म। मतलब यहाँ पे देखो ना, टर्म के बारे में डील होगा तो वी हैव टू यूज द tn का फॉर्मूला, बट हियर द 28 टर्म पूछा है, मतलब n पता है, दैट इज योर 28 लोकेशन, बट a पता नहीं है और d भी पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे? देखो बात सिंपल है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल से सॉल्व हो जाएगा ये, टेंशन मत लो। तो पहले जो दिया है उसको तो यूज करके लो। S55 दिया, सो आई विल पुट इंस्टेड ऑफ n आई विल पुट हियर 55, राइट। Now यहाँ पे भी 55 आएगा, a and d is unknown to me, right, and the value of S55 is known to you, that is 3300. Sum of 55 terms, ये वाला चीज़ जो है ये हो गया 54d। इसमें से आप लीजिए 2 को वहाँ पे भेज दिया, 2 को डिवीजन का वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में गया। यहाँ से भी कुछ काम हो सकता है,
मेरे ख्याल से भी इसको अच्छा ओके वही किया। अरे यार क्यों कॉम्प्लिकेटेड किया सॉल्व, कॉम्प्लिकेटेड बहुत करते भाई ये लोग, मल्टीप्लाई कर दिया पागल लोगों ने, क्यों ऐसा कर रहे हो। बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है हमें, बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है हमें, बच्चों को जितना इजी दोगे उतना अच्छा है ना। मतलब अननेसेसरी क्यों कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाना, ये मैं बोल रहा हूँ। ऑलराइट, सो हियर व्हाट वी कैन डू, मेरी बात सुनो, आप क्या करोगे, यहाँ से ना आप 2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो अंदर बचेगा आपका a प्लस 27d, क्या बचेगा a प्लस 27d, राइट। तो 55 इंटू 2 कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। फिर ये 110 जो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा उसको आप दूसरे साइड भेज दो तो वो डिवीजन में जाएगा लाइक दिस वे। तो उसका आंसर आएगा आपका 60 ये साइड में, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा आपका a प्लस 27d। ओके, नाउ इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 या कुछ तो उसको दे दो, दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ फाइंड 28 टर्म ना, तो 28 टर्म के साथ डील करने के लिए वी वांट द फार्मूला ऑफ टी एन। सो यहाँ पे आएगा टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो 28 तो एन के यहाँ पे आएगा 28, इधर भी आएगा 28। नाउ टी 28 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा 28 माइनस 1 दैट इज 27d। लेकिन 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 a प्लस 27d का वैल्यू क्या है 60 है ना, तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। वाई, बिकॉज दिस इज ऑल्सो a प्लस 27d एंड दिस इज ऑल्सो a प्लस 27d। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है 60, सिंपल, ठीक है। सो वी कैन कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो वी कैन से दैट t28 इज इक्वल्स टू 60, मतलब 28th टर्म ऑफ दैट गिवन सीक्वेंस विल बी योर 60। चलिए ये भी 3 बढ़िया सम है अपने पास, 7, 8 एंड 9 IMP सम भी है। इन एन AP सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 505। 3 नंबर है, वो अपने को पता नहीं कौन है, उन तीनों का एडिशन इज 27 एंड उन 3 नंबर्स का सब प्रोडक्ट्स जो रहेगा दैट इज योर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज योर 504। प्रोडक्शन भूलने वाला था मैं, मल्टीप्लिकेशन रहेगा 504, ठीक है। एंड अच्छा ये वाले सिलेबस में उन्होंने ऑलरेडी हिंट दिया है, हम लोग के टाइम पे ये हिंट वगैरह नहीं दिया होता था। सो 3 नंबर रहेगा तो याद रखो ए बीच में वाला आ गया, आगे a प्लस डी, पीछे a माइनस डी, बराबर है ना। सीक्वेंस में क्या करेंगे, अगर आगे जाने का तो प्लस डी करते जाओ और पीछे जाने का तो माइनस डी करते जाओ। तो 3 नंबर्स के लिए a प्लस डी, a माइनस डी, ठीक है। एंड यूज दिस कंडीशन विच इज गिवन टू यू, तीनों का सम दिया है, डाल दो, फिर तीनों का एडिशन कर दो एंड दैट शुड बी इक्वल टू योर 27। सो तीनों का एडिशन हो गया a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27। नाउ हियर d एंड d विल गेट कैंसल, a प्लस a 3 है, 3 मल्टीप्लीकेशन निकल गया वहाँ पे, a का वैल्यू विल गेट एज 9, तो a का वैल्यू मिल गया। Now we will use the second condition. What is that? Their products multiplication is equals to 504. अभी देखो ना, अभी आपको कुछ बात सूझ रही है क्या, हाँ कर ही दिया इन्होंने, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। तो फॉर्मूला था ना अपने को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे यहाँ पे a और d की बात कर रहे हैं, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू 504, ठीक है। देन a इज इक्वल्स टू 9, तो आप क्या करो 9 को यहाँ पे पुट करो, 9 को भेज दो वहाँ पे, भेज दो, अभी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, इधर आएगा 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 9 504। इसको निपटाना ना पहले, उधर भेज दो ना यार, तो हो जाएगा डिवीजन में, राइट। देन ये वाला 9 का स्क्वायर 81 आएगा, दैट विल गो इन सब्ट्रैक्शन, ये आएगा आपका 56। करो ना चीज़, ये 81 है ना, काम करो ना यार, माइनस है ना ये डी स्क्वायर, उसको उधर भेजो एंड इसको इधर लेके आओ, ठीक है। सो 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, सो दिस मस्ट बी समवंस स्क्वायर और दिस मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 25, राइट। तो अभी क्या करेंगे, टेकिंग ए बाबा लिख यहाँ पे 20, टेकिंग
taking square root on both side. So we will get two possible values, that is plus minus 5. मतलब d तेरा प्लस भी हो सकता है या d तेरा माइनस भी हो सकता है. तो वापिस से a और d का वैल्यू हम लोग पुट करके देखेंगे. दोनों का करके बताया, मतलब तेरा d अगर पॉजिटिव रहेगा तो और d अगर नेगेटिव रहेगा तो. दीज आर द वैल्यूज इफ योर d इज नेगेटिव एंड दीज आर द वैल्यूज इफ योर d इज पॉजिटिव. ठीक है, समझ लो बात मेरी, ध्यान से देख लो. नेगेटिव वैल्यूज आ गए यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यूज आ गए. ठीक है, सो a माइनस डी 9 माइनस 5 4, a प्लस डी 9 प्लस 5 14. यहाँ पे माइनस 5 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस. ईजी है, बढ़िया समय. फाइंड द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन AP हुज. अच्छा, वहाँ पे भी वही टर्म्स पूछा था क्वेश्चन में. वैसे यहाँ पे वो 4 टर्म निकालने का, वहाँ पे 3 टर्म था. हुज सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14. तो अभी 4 टर्म रहेगा तो ये चीज़ अपने को यूज़ करने का. a आगे वाला a प्लस डी, पीछे वाला a माइनस डी. ठीक है, एंड देखो अभी ये है ना a प्लस डी, तो उसके आगे जाने के लिए क्या करेंगे, और एक d ऐड करेंगे. तो a प्लस डी प्लस डी तो हो जाएगा a प्लस 2d. समझ रहे हो बात मेरी. तो ऐसे आपको ये 4 लोग मिल जाएंगे. ठीक है, तो वी विल यूज द कंडीशन नाउ. तो पहला तो सम का कंडीशन है, दूसरा भी सम का ही कंडीशन है. तो पहला तो सभी का सम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, द सम ऑफ ऑल 4 टर्म्स इज इक्वल्स टू 12. कैंसिल देखो पहले क्या क्या हो रहा है, डी डी कैंसिल हो रहा है, ये वाला, ये ए 4a प्लस 2d. यहाँ से कॉमन ले लो ना, जमता है तो. 2 को कॉमन लिया एंड 2 को उधर भेज दिया, तो डिवाइडेड बाय 2 6 हो गया. 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6. एंड नाउ सेकेंड कंडीशन कि यार सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. तो ये थर्ड है, ये तेरा फोर्थ है, ये थर्ड है और ये तेरा फोर्थ है. तो उनका सम कितना है, 14. आया 14. सो a प्लस a 2a, d प्लस 2d 3d. यहाँ पे कुछ चांस है क्या कॉमन वगैरह लेने के लिए. फिर इसको क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d. समझ रहे हो. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपने को d का वैल्यू मिल जाएगा. अभी यार आना चाहिए ये चीज़ अपने को. माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, 2a कैंसिल, 3 माइनस 1 2d 8, देन दिस 2 विल गो हियर 4. अब विल पुट द वैल्यू ऑफ d. समझा ना, आगे का बात तो तुम लोग को समझा रहेगा. d मिल गया तो d का वैल्यू वी विल पुट एनी ऑफ दिस वन इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ a. एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d देन यू कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर ना टू गेट द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज. राइट, आगे का सॉल्व करोगे खुद से कि चालू रखूँ, चालू ही रखते, चलो कोई दिक्कत नहीं. a माइनस डी तो 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3. आगे देख लो अभी a1 a प्लस डी 1 प्लस 4 दैट इज 5. यहाँ पे अभी चौथा टर्म a प्लस 2d ना, 1 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 8, 1 प्लस 8 9. ऑलराइट, सो दीज आर योर 4 नंबर्स. लास्ट वाला बहुत ही मस्त और इजी सम है. इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, 9th टर्म मतलब T9 इज 0, T9 इज 0, शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म. 29 टर्म मतलब T29 इज ट्वाइस द 19th टर्म, 19th टर्म. ठीक है, तो सिंपल. अभी यहाँ पे टर्म्स के बारे में हम लोग को चीज़ें देखनी है. T9 का वैल्यू पहले फाइंड आउट किया क्योंकि वो 0 उन्होंने बताया है. तो a प्लस 8d एंड विच इज इक्वल्स टू 0 ना. तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 0. ऑलराइट, a का वैल्यू मिल जाएगा अपने को माइनस 8d. वहाँ पे गया तो a इज इक्वल्स टू माइनस 8d. बराबर है, साथ में रखो. देन वी हैव टू शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म. तो दोनों टर्म्स को फाइंड आउट कर लो ना. T29 फाइंड आउट करो, a plus 29 minus 1d. तो the answer will be a plus 28d. राइट, रुको साथ में रखो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के. अभी 19th फाइंड आउट करो, T19th. तो a plus 19 minus 1d
आंसर आएगा आपका 18D ना, a प्लस 18D, राइट। अभी देखो उसको डबल दिखाने का अपने को, एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -8D। तो यहाँ पे या यहाँ पे किधर भी डाल दो, T29 में उन्होंने डाला तो ये वाला वैल्यू, तो -8D प्लस 28D कितना आएगा आंसर, सिंपल रहे 20D, ठीक है। एंड T19 में भी डालो वापिस से a का वैल्यू दैट इज -8D, तो -8D प्लस 18D कितना आएगा 10D। तो हो गया ना डबल यार, देखना है T19 कितना है 10D, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 10 20D हो जाएगा, मतलब 29। सो T29 इज नथिंग बट 2 इंटू 10D, एंड 10D इज नथिंग बट T19। समझा क्या क्या किया, 20D को अलग करके लिखा है 2 इंटू 10D, बट 10D इज नथिंग बट योर T19, तो 10D के यहाँ पे आया T19, तो ये प्रूफ हो गया अपना T29 इज डबल ऑफ T19। समझा क्या? ऑलराइट, सो हियर वी आर फिनिशिंग विथ अवर, ठीक है, प्रूफ हो गया अपना। तो ये अपना 3.3 यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। कल मैं ट्राई करूँगा 3.4 भी ख़त्म करने के लिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द ज्योमेट्री का पार्ट। ज्योमेट्री का सर्कल नहीं लेते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो गया। जो इजी वाले चैप्टर्स ना वो ई लर्निंग में देख लेते हैं, ठीक है, वो वाला देख लेते हैं, फिर सर्कल आराम से हम लोग लेक्चर में देखेंगे क्लासेस में, और बाकी लोग के लिए भी वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, विच आर नॉट द पार्ट ऑफ क्लासिक क्लासेस। ओके, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। 3 वीडियोज़ है, कंबाइन होने के लिए टाइम लगेगा, अपलोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, चलो फटाफट। थैंक यू सो मच।